Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on chapter number 5 and unit number 5, and the name of our unit is Agriculture and Livestock. Today I am going to deliver its 6th lecture. This is the review, यानी कि हम तमाम SLOs complete कर चुके हैं और आज जो है हम रिवाइज करेंगे उनको. So these are all the student learning outcomes that we have covered alhamdulillah in this unit. So look at the Islamic perspective that we have discussed in this unit. So he it is who has made earth subservient to you, easy for you to walk to, live and to do agriculture on it. So walk in the path thereof and eat of his provision, and to him will be the resurrection. So another Islamic perspective that we discussed here is, and of the grazing livestock are carriers of burdens and those too small. Eat of what Allah has provided for you and do not follow the footsteps of shaitan. Indeed, he is you a clear enemy. So my dear students, Allah Ta'ala ने हमें चौपाए दिए हैं जो कि हमारा बर्डन शेयर करते हैं, और इसके अलावा हम इनमें से बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनको हम अपनी खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं. तो अल्लाह ताला ने हमें हलाल हराम का फ़र्क सिखाया है. हमें चाहिए कि हम हमेशा हलाल माल जो है और हलाल खुराक जो है उसको इस्तेमाल करें. Okay, my dear students, so let's quickly move forward towards the review. So my dear students, हमने discuss किया था about different types of crops. जो mainly पाकिस्तान is an agriculture country, तो यहाँ जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो agriculture के काश्तकारी के शोबे से मुंसलिक हैं. So which are the two crops जो कि यहाँ पर two types of crops जो कि यहाँ पर grow की जाती हैं. So quickly tell me that what is agriculture. So agriculture is when people cultivate different types of crop. So that is agriculture, and they also rear animals for their benefits. So that is called agriculture and livestock. So what is food crops? The crops which are grown to fulfill our requirements of food are called food crops. The examples are rice, wheat and maize. And the next is, what is cash crops? The cash crops, these crops are grown for the profit and the cash, यानी कि आप profit generation के लिए जो है इसको इन crops को grow करते हैं, जैसे कि sugar cane है, sunflower seeds हैं, cotton है. These all are cash crops. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी स्टोरी ऑफ कॉटन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है कपड़े बनाए जाते हैं, और हमने इसकी पूरी स्टोरी जो है उसके बारे में डिस्कस किया था. कैसे एक छोटा सा बीज है जो कि ज़मीन में लगाया जाता है, उसके बाद उससे जो है वो फसल उगती है, उसके ऊपर कॉटन के जो छोटे छोटे फूल हैं वो उगते हैं, और जब वो पूरी तरह राइप हो जाते हैं तो उनको वहाँ से चुन लिया जाता है, और उसके बाद उनको फैक्ट्रीज में लेकर जाया जाता है जहाँ से उनसे धागा बनाया जाता है, और उसके बाद धागे से कपड़े मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो बुने जाते हैं, बनाए जाते हैं. सो हाउ डू वी मेक क्लोथ्स. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मेकिंग क्लोथ्स. इसके अलावा हमने और बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ी जो कि उनके इनिशियल, जैसे कि लकड़ी जो है, दरख्त जो है उनको काटा जाता है, उनकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है. इसी तरह शुगर केन जो है, गन्ना जो है, उसका रस इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उससे चीनी बनाई जाती है. तो हमने मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पढ़ी थी जिनसे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो बना लेते हैं. ओके, व्हाट इज एनिमल रियरिंग. इसके बाद हमने एनिमल रियरिंग के बारे में पढ़ा था. जो जानवर जो हैं जिनको रियर किया जाता है या ब्रीड किया जाता है हमारे पर्पस के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, खुराक के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए, उसको हम एनिमल रियरिंग कहते हैं. जैसे कि काउज एंड बफलोज हैं, हेन्स हैं, हनी बीज, डक्स, गूज, गोट्स, शीप्स एंड कैमल्स. दीज ऑल आर एनिमल्स दैट आर रियर्ड for the purpose of for the benefits and the purpose of human beings. Okay, my dear students, so now is the time for evaluation, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So first of all, sort the crops into food crop and cash crop. So my dear students, यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स लिखी हुई हैं. आपने इनके नीचे लिखकर बताना है कि इनमें से कौन सी फूड क्रॉप है और कौन सी कैश क्रॉप्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट द स्टोरी ऑफ दिस वुडन चेयर. यहाँ आपको एक वुडन चेयर दी गई है, तो आपको इसकी स्टोरी जो है वो कंप्लीट करनी है रिटन वर्ड्स में. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पिक्चर्स के थ्रू आपने गौर से पिक्चर्स को रीड करना है और उसके बाद आपने अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना है. Next part is define the following: agriculture, livestock. Okay, so pause the video and quickly finish this worksheet.
I hope everybody has completed it. So my dear students, submit it to your teacher for evaluation and grades. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will completely read unit number 5, ताकि अगर कोई भी आपकी लैक हो गई है चीज़ें, कोई चीज़ भी मिस हो गई है, वो आपकी कंप्लीट हो जाए और इस तरीके से आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगे. Okay, my dear students, so for wrap up, in this unit, we have learned that agriculture means growing crops and rearing animals. Pakistan grows food crops and cash crops. Crops grown for food are called food crops. Crops grown for profit are called cash crops. We obtain clothes from cotton. Animals are reared for meat, milk, eggs, leather, honey, etc. Animals like cow, buffaloes, hen, honeybee are reared in Pakistan. So my dear students, हमने एनिमल रियरिंग, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, इनके काश्तकारी के बारे में और जो जानवर हम ग्रो करते हैं उनके बारे में, फूड क्रॉप्स और क्रैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ा जो हमारे खाने की ज़रूरत पूरा करती हैं या हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करती हैं. इसके अलावा हम मुख्तलिफ क्रॉप से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कॉटन से कपड़े बनाते हैं. इसके अलावा हम जानवरों को जो ब्रीड करते हैं हम उनसे गोश्त, दूध, अंडे, शहद और इस तरह की लेदर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम हासिल करते हैं. इसके अलावा हम इनको खाने पीने की चीज़ों के अशिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में भी रियर करवाए जाते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस यूनिट. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.